Hello friends, in the previous lecture we have discussed what are functional dependencies and how to find whether a functional dependency are valid or invalid based on the value you have filled in the table. Okay, now let's proceed further. As I told you, why we discuss functional dependency, because we want to do normalization, and to do normalization we will use functional dependencies as a tool. Okay, but you see, अभी जितना भी फंक्शनल डिपेंडेंसीज हमने प्रोसेस किया है, इज इट ओके और इज दैट नॉलेज इज सफिशिएंट टू कंटिन्यू फॉर नॉर्मलाइजेशन, और वी हैव टू डिस्कस सम मोर फैक्ट्स. नाउ यू अंडरस्टैंड दिस थिंग. सपोज लेट मी हैव अ टेबल capital R which have three attributes, capital A, capital B and capital C, and let me quote two functional dependencies. From capital A we can find capital B, and from capital B we can find what? Capital C. Now you understand this thing. हम इसको कैसे समझते हैं? टू डू नॉर्मलाइजेशन वी रिक्वायर फंक्शनल डिपेंडेंसी, एंड यू कैन इमेजिन, शुड आई गो विद पार्शियल सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी और शुड आई हैव अ एंटायर सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी? नाउ व्हाट डज इट मीन? नाउ यू अंडरस्टैंड. इफ आई आस्क यू, इफ आई टेल यू कैपिटल A, you see capital A, then what other attributes you can find? So there's a direct dependency here from capital A to find capital B. So it means अगर आपके पास capital A है तो आप पक्का मुझे क्या बताओगे? What is capital B? But the question is it only capital B or you can also find capital C? So you see, there's one more dependency from capital B to what? Capital C. And now you can understand, अगर A से आपको क्या मिल सकता है? B, और B से क्या मिल सकता है? C. Then transitivity holds good in this case, and you can also find what? C. It means what? Okay, for example, let me say capital F is the entire or total set of functional dependency which actually holds on this table. Suppose let me decompose it in two parts, capital F1 and F2. Now what is F1? F1 are those dependencies which are directly visible, जो हमको नजर आ रही हैं. For example, for talking only about A, there is a dependency capital A to what? Capital B. Now this dependency directly visible और कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको साथ नॉर्मलाइजेशन के लिए आगे बढ़ सकते हैं. बट यू सी, there is one more dependency capital A to capital C, which is not visible directly, but it actually holds good. Why? Because you see there are two dependency, capital A to capital B and capital B to capital C. तो ये भी यहाँ पर होल्ड कर रही थी, जो कि हमको in the first look visible नहीं थी. Now you understand. इसका मतलब the total set of dependency from capital A is what? Capital B and capital C. And before I continue for normalization, मेरे पास ये total dependency होना चाहिए. But if I go only or I give only one look, मेरे को सिर्फ एक ही dependency नजर आ रहा है, वो क्या है? Capital A to what? Capital B. Okay. Now you understand with this thing. Before we go to normalization, it is very important that you have this entire set of functional dependencies, and how we compute it, we call it as a closure set of attribute. What is closure set of attribute? It is a set of all those attributes which can be computed from the given attribute. For means what? Now if I ask you what is closure set of capital A, तो you see capital A से हम find कर सकते हैं capital B और capital C भी. तो before we continue further, now first we'll understand how to find closure set of attributes, and you understand this thing. Now that is a very very important topic. Why I'm saying so? Because you see, ये directly question इतना important नहीं है, but there's an important question जो गेट में 1 या 2 मार्क का वेटेज रखता है, that is identify the candidate key. और very popular question, identify the number of candidate key. You see, you can never find the number of candidate keys or primary key, or you cannot find super key unless and until you have a mastery to find closure set of attributes. Second point, if you cannot find key, you cannot continue for normalization. तो इसका मतलब normalization के लिए आपको key पता होना चाहिए और key के लिए आपको closures निकालना आना चाहिए. तो सबसे पहले भी हम क्या करने वाले हैं? We'll do a good practice. I'll try 2 or 3 or 4 different questions जहाँ पे हम closure set find करना सीखेंगे, and when we are comfortable with it, then we'll continue with subsequent logics. Okay. Now before I proceed further, for this question again, if I ask you, okay, let me rub this. Okay, so if I ask you find closure set of capital A
of capital B and capital C. Now that is a notation, F super A, yeah, A superscript F, which means what, the set of all the attributes which can be find or which can be searched using what, A. तो now you understand, as you know trivial dependency, तो अगर A आपके पास है, which I discussed in the previous lecture, तो अगर A आपके पास है तो सबसे पहले बोलूंगा मेरे को क्या पता है, A पता है, but now from this dependency A से हमको क्या मिल रहा है, B, और B से क्या मिल रहा है, C, that is fine. What about capital B? तो capital B आपके पास है तो वो तो आपके पास है ही, और उससे क्या भी मिल पा रहा है, C. And what about capital C? Capital C only. So now these are closer set of attributes, closer set of A, B and C. You see, this question was very easy because there are only two dependencies and we can find it directly. You see, let me tell you, as I told you, in this series of lectures I'll discuss topics only in brief. So practically saying, there are two methods to do that. One is using inference rules and one is using this closure method, which I'll concentrate on. So inference rule is also important, but it is more or less theoretical and most of the time referred in competitive in your university exams. Okay, it's a very lazy and very slow process. So I'll tell you directly what is the fast method to compute closure set of attributes. So now let me discuss 2 or 3 different questions where we compute closure set of attributes, and then I'll continue with keys. Okay, तो now let's try some questions जहाँ पे हम सीखेंगे कि कैसे we find the closer set of attributes, and remember this very important, so concentrate. Okay, तो now that is question number 1. हमारे पास एक टेबल है capital R, you have A B C D E F G set of attributes. Now the question is find A closer C. तो जैसा मैंने आपको बताया था in the step number 1 what I'm going to do, हमारे पास AC है तो that means what, AC find करना, तो let me have AC. Okay, now you see, suppose करो there are 3 functional dependencies you have. Let me number them 1 to 3. And what is the logic? You see, if I have a functional dependency from alpha to beta, okay, then I'll say if you have alpha you also have what, beta, because अगर alpha है तो alpha से आप क्या भी सर्च कर सकते हो, beta. तो अगर आपके पास alpha है तो मैं मान लूंगा आपके पास क्या भी है, beta. बस यही प्रिंसिपल मैं यूज करूंगा. तो now you see, step number 1, let me see, if you have A you also have what, B. और क्या हमारे पास A है, yes हमारे पास A है. तो what I'll do, yes I use this functional dependency and now अब हमारे पास क्या है, we have capital A, capital B and capital C. आप देखना स्टेप बाय स्टेप. नाउ लेट मी प्रोसीड फर्दर. ये डिपेंडेंसी बोलता है इफ यू हैव BC देन यू आल्सो हैव व्हाट, DE, और यू कैन सर्च DE. क्या आपके पास BC है? हाँ है. तो आप समझे, कोई भी फंक्शनल डिपेंडेंसी आप सिर्फ तब यूज कर सकते हैं व्हेन यू हैव द एंटायर लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द प्रोडक्शन. तो नाउ आई हैव BC, यस आई हैव BC, लेट मी यूज दिस आल्सो. तो अब मेरे पास क्या हो गया, नाउ आई हैव ABC, सॉरी I have A, B, C, D and what, E. Now let me come to the third dependency. If you have A, E, G then you have what, G. Although if you concentrate on the previous lecture you understand now that is a trivial dependency, because you see अगर आपके पास A, E और G है तो आपको G मिलेगा, but भाई G तो आपके पास पहले से है. तो actually it doesn't make sense, but फिर भी I'll follow the protocol. मैं दोबारा चेक करता हूँ क्या आपके पास A, E और G है. हमारे पास A है, हमारे पास E है, but हमारे पास G नहीं है, so I cannot use that. Okay, तो if I complete finally आपको क्लोजर क्या मिला, A, B, C, D and E. Now what does it mean? It means if you have AC you can find A, B, C, D and E. Now that is an entire set of functional dependence. You see जो problem हम भी समझ रहे थे, if you want to do normalization you must have a knowledge कि A और C को यूज करके आपको क्या क्या मिल सकता है. डायरेक्टली देख के समझ नहीं आ रहा था, बट जब हमने रिकर्सिवली प्रोसेस यूज किया तो नाउ वी अंडरस्टैंड कि ये सारे के सारे वैल्यूज आप सर्च कर सकते हो अगर आपके पास क्या है, AC. ओके, नाउ लेट मी रिपीट द प्रोसेस इन क्वेश्चन नंबर 2. एक बार इधर ट्राई करते हैं. ओके, नाउ अंडरस्टैंड इट्स अ वेरी इजी प्रोसेस यू सी. और अभी तो हम ट्राई कर रहे हैं इन द लेटर क्वेश्चंस ना, व्हेन वी डू नॉर्मलाइजेशन विल आइडेंटिफाई कि ये सारा प्रोसेस विल डू इन माइंड, मन में इसको सॉल्व कर लिया करेंगे. ओके, तो नाउ अगेन लेट मी नंबर देम, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4. आई एम जस्ट डूइंग द नंबरिंग बिकॉज ऑफ सेक ऑफ कन्वीनियंस, ताकि थोड़ा सा समझना इजी हो, बाद में ये भी नहीं करेंगे. ओके, नाउ लेट मी स्टार्ट. डिपेंडेंसी नंबर 1, क्या हमारे पास A है? ओके, हमने B से स्टार्ट किया, हमारे पास सिर्फ क्या है, B. क्या हमारे पास A है? नहीं, अभी हमारे पास A नहीं है, और जब तक A नहीं है आपको BC नहीं मिल सकता. कोई बात नहीं, लेट मी प्रोसीड फर्दर. क्या आपके पास CD है?
नहीं, अभी हमारे पास सी डी भी नहीं है, कोई बात नहीं, फिर आगे चलते हैं। क्या आपके पास बी है? हाँ हमारे पास बी है, वेरी गुड। तो अब हम इस डिपेंडेंसी को यूज कर सकते हैं, और जैसे ही बी आपने यूज किया डिपेंडेंसी नंबर 3, तो बी से आपको क्या मिल गया? डी। नाउ वी हैव बी डी, वेरी गुड। फर्दर प्रोसीड करता हूँ। क्या आपके पास ई है? नहीं, हमारे पास ई नहीं है, तो हम इसको यूज नहीं कर सकते। अच्छा, नाउ इन दिस क्वेश्चन यू अंडरस्टैंड, क्या ये साइकिल एक बार ही करना है कि आई हैव टू टेक मल्टीपल इटरेशंस? यू सी, ऐसा हो सकता है कि बाद में कोई ऐसा वैल्यू ऐड हो जिसकी वजह से जो प्रीवियस डिपेंडेंसी है वो भी दोबारा क्या बन जाए? यूजेबल। तो मींस व्हाट, आई विल रिपीट दिस प्रोसेस until and unless the result of 2 iterations is entirely same. Okay, तो now let me have one more try. आपको बात समझ आई? मैं तब तक ये काम करता रहूंगा जब तक 2 इटरेशन का या 2 बार करने के बाद रिजल्ट क्या नहीं मिल रहा, सेम। उसके बाद मैं समझ जाऊंगा अभी दोबारा करने से कुछ फायदा नहीं हो रहा, रिजल्ट सेम आ रहा है, मीन दैट इज द आंसर। ओके, नाउ लेट मी हैव वन मोर ट्राई। क्या आपके पास अभी कैपिटल ए है? नहीं, अब भी नहीं है, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। Now you see, do you have CD? Now the problem is you have D but you don't have C. तो इसका मतलब अभी भी डिपेंडेंसी यूजेबल नहीं है, because again remember one point, किसी भी डिपेंडेंसी को आप सिर्फ और सिर्फ तब यूज कर सकते हैं, you can use it only when you have the entire left hand side of the production. Remember one point, हमने बहुत ज़्यादा होमवर्क नहीं किया फंक्शनल डिपेंडेंसी, but let me ask you this thing, if you have like this A, B to C. Now what does it actually means? इसका मतलब ये नहीं है, can I write it like this? Actually we didn't discuss this inference rules, so अभी इस पे concentrate नहीं किया था, but यहाँ पे आप समझ सकते हो ए बी से आपको क्या मिल रहा है? सी। कैन आई से आपको सिर्फ ए से या सिर्फ बी से सी मिल रहा है? नहीं, ये डिकम्पोजिशन रूल एक हम स्टडी करते हैं, ये आप नहीं बोल सकते, बिकॉज सी तक पहुंचने के लिए ए और बी दोनों का होना जरूरी है, यस और नो। बट यहाँ पे आप बोलो सिर्फ ए या सिर्फ बी, ऐसा लिखना गलत है। तो इट मीन्स व्हाट, जैसे अभी हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे, क्या हमने बोला कि यू हैव व्हाट सी डी, और सी डी से मिल रहा है ए, बट आपके पास सिर्फ क्या है? डी। तो क्या सिर्फ डी से ई मिल सकता है? नहीं। तो अभी भी मैं इस डिपेंडेंसी को यूज नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, एक चीज यहीं पे कंप्लीट करते हैं। नाउ इफ आई आस्क यू लाइक दिस, A tends to what? B, C. Can I write it like this? A tends to B and A tends to C. Of course, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज यू सी, अगर A आपके पास है तो क्या आपको क्या मिल सकता है? B, C। तो सिर्फ A से B और A से C ऑफ कोर्स मिल सकता है। तो यहाँ पे आप इस काम को कर सकते थे। ओके, नाउ लेट्स ट्राई फर्दर। तो दोबारा ट्राई कर रहे हैं, 2 से कुछ सीखने के लिए नहीं मिला, थर्ड पे आते हैं। क्या अभी आपके पास ई है? नहीं, अब भी हमारे पास ई नहीं है। यू सी, 2 राउंड कंप्लीट करने के बाद भी रिजल्ट क्या मिल रहा है? सेम। इट मींस दैट इज द आंसर। मींस व्हाट, अगर आपके पास बी है तो इन द फाइनल केस हम 2 ही चीज फाइंड कर पाए, आइदर बी और व्हाट? डी। अगेन लेट्स ट्राई वन मोर क्वेश्चन। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही कंसेप्ट क्लियर होगा आपका। तो नाउ इन दिस केस अगेन दिस इज अ टेबल आर विद फॉलोइंग सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, और ये सारी डिपेंडेंसीज हमारे पास है, और हमको क्या बताना है? ए बी का क्लोजर। ओके, नाउ लेट्स ट्राई। तो अगेन स्टेप नंबर 1 हमारे पास क्या हो गया? ए बी। ओके, अभी आगे देखते हैं। ओके, अगेन लेट मी नंबर देम 1 2 3 एंड 4। ओके, क्या डिपेंडेंसी फर्स्ट आप यूज कर सकते हैं? विद ए बी यू कैन फाइंड व्हाट? सी। क्या हमारे पास ए बी है? हाँ, हमारे पास ए बी है। ओके, तो मैं इसको यूज कर लेता हूं, एंड नाउ आई हैव व्हाट? ए बी सी। वेरी गुड, इजी प्रोसेस आपको समझ आ रहा होगा। फिर देखते हैं, क्या आपके पास बी सी है? हाँ, हमारे पास BC है, और BC अगर आपके पास है तो उससे आपको क्या मिल सकता है? AD। नाउ यू सी, वी ऑलरेडी हैव A, तो नाउ आई कैन राइट व्हाट? A, B, C and D. फाइन। नाउ लेट मी कम टू द थर्ड केस। क्या आपके पास D है? हाँ, हमारे पास D है, तो D से आपको क्या मिल सकता है? E। फाइन, तो नाउ A, B, C, D and what? E. ओके, एंड देन यू हैव व्हाट? सी एफ। क्या आपके पास सी है? हाँ, हमारे पाउ सी है, बट क्या हमारे पास एफ है? नाउ यू सी एफ हमारे पास नहीं है। अगेन इवन इफ यू हैव वन मोर इटरेशन, तो अगेन इन द लास्ट केस भी आपके पास एफ नहीं होगा, तो आप कभी बी तक नहीं पहुंच पाओगे। वो अलग बात है कि बी आपके पास पहले से है, तो इसी इसको यूज करके या ना करके इन प्रैक्टिकल हमको कोई फायदा नहीं होना है, बट एज फार एज प्रोटोकॉल इज कंसर्न इस डिपेंडेंसी को मैं यूज नहीं कर पाया, एंड फाइनली यू हैव व्हाट? ए बी सी डी ई। ओके, तो नाउ यू अंडरस्टैंड दिस इज अ वेरी इजी प्रोसेस, और अगर आप थोड़ा ट्राई करोगे तो बहुत इजीली आप किसी भी चीज के लिए क्लोजर फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे सपोज करो मैंने ए बी के लिए किया, मैं आपसे बोलूँ आप बी सपोज करो ए के लिए, या फिर ए सी या डी ई एफ, किसी भी चीज के लिए आप क्लोजर कंप्यूट कर सकते हो।
ओके, नाउ दैट इज अ डिफरेंट क्लास ऑफ क्वेश्चन, थोड़ा चेंज कर दिया। वो क्या, ये एक टेबल आपके पास है, बहुत सारे डिपेंडेंसीज आपके पास है, और आपसे क्लोजर नहीं पूछा इसने क्या पूछा है, क्या बी सी डी टू एच ये डिपेंडेंसी वैलिड है कि नहीं। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, एनी आइडिया? ओके, थोड़ा हम काम कर चुके हैं डिपेंडेंसी, यू मस्ट अंडरस्टैंड ये डिपेंडेंसी सही है कि नहीं, कैसे फाइंड कर सकते हैं। ओके, लेट मी फाइंड बी सी डी क्लोजर, ऐसे। और अगर बी सी डी के क्लोजर में आपको क्या मिला, एच, इसका मतलब अगर आपके पास बी सी डी है तो आप क्या फाइंड कर सकते हो, एच, देन इनडायरेक्टली यू कैन प्रूव यस दैट फंक्शनल डिपेंडेंसी होल्ड गुड। आपको बात समझ आई मैं क्या बोल रहा हूँ, व्हाट आई एम सेइंग। यहाँ पे आपसे ये नहीं पूछा कि किसी चीज का क्लोजर कंप्यूट करो, इतने डिपेंडेंसी देने के बाद आपसे पूछ रहा है कि बी सी डी टू एच इज दिस डिपेंडेंसी होल्ड्स गुड और नॉट। तो मैं क्या कर रहा हूं, आई एम फाइंडिंग द क्लोजर ऑफ BCD, और अगर BCD के क्लोजर मुझे क्या मिला, H, इसका मतलब इनडायरेक्टली मैं आपसे बोल रहा हूं कि BCD से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, H, और अगर H फाइंड कर सकते हैं इसका मतलब ये डिपेंडेंसी क्या है, बिल्कुल वैलिड है। तो नाउ लेट मी ट्राई अगेन, स्टेप नंबर 1, आपके पास सबसे पहले आपको क्या मिला, BCD। अगेन नाउ लेट मी ट्राई वन बाय वन। क्या हमारे पास A है, नहीं हमारे पास A नहीं है। आगे चलते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे। क्या हमारे पास CD है, हाँ हमारे पास CD है, और CD है तो CD से आपको क्या मिला, E। तो नाउ यू हैव व्हाट, BCD एंड व्हाट, E। नाउ लेट मी कंटिन्यू फर्दर, डू यू हैव E, यस यू हैव E, E से क्या मिल रहा है, C। नाउ थियोरेटिकली हमने यूज कर लिया बट कुछ भी नया लॉजिक ऐड नहीं हुआ है, दैट्स फाइन, वी कंटिन्यू फर्दर। नाउ डू यू हैव D, yes we have D, और D से आपको क्या मिल रहा है, A, E and H। now that is important, मैं इसको यूज किया और अब आपको क्या मिला, आपको A मिल गया, B, C, वैसे किसी को पहले किसी को बाद में लिखो, it doesn't make any difference। तो A, sorry what we have add, okay we have used D, तो now we have D से तो you have A, then B, C, D, E and what, H। और क्या इसको आगे कंटिन्यू करने की जरूरत है, आंसर इज नो। यहाँ पर हम क्लोजर फाइंड नहीं कर रहे थे, हमको सिर्फ देखना था BCD के क्लोजर में H मिलता है कि नहीं, और आप देख रहे हो कि यहीं पे आपको इन बिटवीन द प्रोसेस क्या मिल गया, H। नाउ इट मींस व्हाट, दिस डिपेंडेंसी इज एग्जैक्टली राइट और करेक्ट है। तो नाउ यू सी विद दीज केसेस I have tried 2 or 3 or 4 different questions where we try to find a closer set of attributes. If you have any confusion, again you rewind the video and play it one more time. I think that is more than sufficient to understand how to find closer set of attributes. Now using these closer sets, let me discuss 2 or 3 applications, like how to identify whether two dependencies are valid, are same or not, or different or not, and then we'll do the important question that how to find the नंबर ऑफ कैंडिडेट की और नंबर ऑफ प्राइमरी की। और पहले तो मैं यही डिस्कस करूंगा कि कीज होते क्या है, बिकॉज बहुत लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है, व्हाट इज सुपर की, व्हाट इज कैंडिडेट की, व्हाट इज प्राइमरी की। ओके, तो ऑल दिस लॉजिक आई विल डिस्कस इन द सब्सिक्वेंट लेक्चर। ओके, थैंक यू।